Hello, everyone, and welcome to another episode of the A2H Podcast. Today is episode number 5, and we will be discussing another movie today. The movie in question is Dunki. So, Mr. Singh, what is your opinion on the movie? What did you think? Hello, welcome, boys and ladies. So my opinion on Dunki is quite positive. Um, I, I, I think in the world of Mardhar and action films, Dunki is Dunki fits doesn't fit well, but I like the film. It was quite positive, um, a bit emotional, a bit funny, and a bit of everything. Perfect Raju Hirani movie. What about you, Ramesh I'm or surprised. Sarvesh? I I'm surprised that you have this opinion. मुझे Okay, लगा था कि you will not like it. Honest to God. why is that? I thought like you're like into the thoda bahut action scene and all that. And usually I noticed that you like thodi aise more depth in a movie, a bit of action and like a few thrills up and down. और ये तो ऐसे बिल्कुल एक linear सी story थी. Like there was nothing एकदम Yeah, exceptional, nothing out of ऐसे कोई ना multiverse था like there were no twists or turns. बहुत linear सी movie. It was just yeah. relaxing, refreshing, a breath of fresh air, and I liked it. um, because of that reason कि ऐसे राजू हिरानी मूवी है बिल्कुल सिंपल काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है काफी it's not a topic that's like very you लाइट हार्टेड नहीं है ये टॉपिक राइट बट उसको भी This is yes, Raju Hirani film, but it's not it's nothing compared to his older work. Say it's not the PKs of the world. It's not PK is one of the best films for me. It's not the Three Idiots of the world. Uh, that's a Raju Hirani film. It's not Munna Bhai. It's not quite Munna Bhai. मैं Munna ये Bhai बोलने was लगा so था like for me my favorite राजू हिरानी film is Three Idiots then मुन्ना भाई या फिर reverse depending on the day राइट टॉप टू है मेरे लिए मुन्ना भाई और थ्री इडियट्स पीके I'm surprised you didn't like PK पीके बस as much. ठीक है इट्स नॉट ठीक है क्योंकि उसी के साथ तो वो अक्षय वाली भी आई थी ओएमजी जिसका Yeah, OMG सेम was nice. OMG was सेम a थीम good था film. तो वो बिकॉज इट अक्षय कुमार की नहीं असल में परेश रावल की थी तो वो दोनों सेम थीम्स थे तो लाइक इट वाज देखा हुआ था लाइक पीके एकदम नई नया कॉन्सेप्ट नहीं था and I think Matt Sanju was the only राजकुमार हिरानी फिल्म which was a bit serious जिसमें ह्यूमर थोड़ा कम था और स्टोरी ज्यादा थी और ऐसे डार्कनेस थोड़ा ज्यादा था it was quite a serious movie but Hmm. I think क्या कहते हैं डंकी is in my top 3 राजू हिरानी See, movies में I think you're not the first person who said that to me, that it's not, Dunky might not be the kind of film I would like. Actually, my better half said that to me as well. That uh, you like mass masala action movies, which is हाँ not true. I do like action, but I do like the depth in the film. कोई ऐसे complex story हो तो भी अच्छी लगती है. But um, I guess like I like any cinema. Uh, I हम्म, I I like all the genres, horror as well. हम्म, But I appreciate the cinematography and the acting skills of the actors. Not, but then sometimes movies do go politically wrong for me. Like Sanju, I really liked Sanju, बट वो ऐसा हो गया था ना कि संजू बाबा की इमेज ऐसे वाइट वॉश करने के लिए मूवी बनाई है तो दैट
that I didn't quite like that, but overall I liked the film संजू, because वो ऐसे लाइट हार्टेड कॉमेडी थी और डार्क पार्ट भी था उसमें, कितनी मोटिवेशन उसमें भरी थी। द वो कर मैदान फतेह हाँ, didn't quite touch me oh, it didn't. as hard as no, it didn't quite touch me as hard as that song, title song of Lakshya did, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है. That was very deeply motivating for me. But this Kar Maidan Fateh, it was a good song. I guess like you grow with the It's age. in my When gym songs Okay. I think playlist. I was of a tender age, of a very young tender age when I saw Lakshya, and it did quite hit me well, and it resonated with me because of the army background of the film. Hmm. Whereas संजू बाबा क्या यार, वो बिगड़ा हुआ आदमी है, वो अमीर बाप का बेटा, उसकी माँ ऐसे, वो क्या कितनी बड़ी ऐसे एक्टर, हाँ, बहुत उन्होंने नाम कमाया। और ये लड़का पड़ गया, नशे में पड़ गया, और नशे में पड़ गया तो उसको उसके फिर उसके सारे उसके पीछे लगे हुए, माँ बाप भाई बहन सारे उसके पीछे दोस्त। हम्म, कि तू अब सुधर जाओ। आई टू मी लाइक दैट इज टू टू मच एंटाइटलमेंट। एंड फिर उसके ऊपर ऐसे बना, उसको हीरो बनाकर दिखा, वो कहाँ से हीरो है उस मूवी का। संजू, आई लव संजू बाबा, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो भाई भी नीचे आता है, संजू बाबा सबसे ऊपर है। पर मतलब ही इज नॉट अ हीरो इन हिज फिल्म, इन हिज ओन फिल्म ही इज नॉट अ हीरो। hmm. और I मतलब कुछ भी कर रहा है ना, कोई समझदारी नहीं है, AK-56 रख रहा है घर पे, मतलब व्हाट आर यू डूइंग मैन, व्हाट आर यू लाइक, क्या कोई दिमाग लगा भाई, क्या कर रहा है। हाँ, वो उस मोमेंट में यही तो था कि वो दिमाग लगा नहीं रहा था, लाइक हाँ, जुवेनाइल। तो दैट्स नॉट क्वाइट हीरो मटेरियल फॉर मी, राइट, कि वो कुछ अगर हीरो है तो थोड़ा दिमाग भी लगाएगा, थोड़ा एक्शन भी करेगा, सब कुछ करेगा, बट संजू बाबा इज नॉट क्वाइट। अच्छा, ये अपना डंकी में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, दैट इज हीरो मटेरियल। उसने कैसे हम्म। दिमाग लगाया, उसका कितना उसका विटी था वो, कितनी उसकी हाँ, क्विक थिंकिंग थी ऑन हिज फीट। उसने वो आइलैंड्स क्रैक कर दिया, आइलैंड्स का हाँ, फॉर्मूला बना दिया। दैट वाज हाँ, सच अ गुड फॉर्मूला, एक जने का तो लग भी गया, आइलैंड्स आइलैंड्स भी क्लियर हो गया हाँ। उससे। हम्म, सर, क्या था कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई बट आई एम आई offended that you यार क्या I था can वो? speak English. I know colon, semicolon, comma, exclamation mark हाँ, of the English, but I'm deeply offended that you offended. want to discuss my test my knowledge on this subject. Punching. I think your prestige institution needs a change of curriculum, something like ओ that. ब्रो, Man, that वो was जो so awful. फैमिली पर वो लगता है शाहरुख का होता है ना सीन, वो जब वो उसकी कैन यू स्पीक अबाउट योर फैमिली एंड इज लाइक आई डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट माय फैमिली, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट माय फैमिली फॉर 2 minutes. Then try again. Try. My papa dead, my mummy dead, my ताया dead, my ताई dead. और कितने लोगों को मारना पड़ेगा मैं जी। किसको मारूं? Oh bro, it's कहता, such a भाई अब मैंने फॉर्मूला ढूंढ लिया, पूरा पंजाब यूके जाएगा भाई, आप कुछ नहीं है तो पूरा पंजाब यूके जाएगा। That was too funny for me. हम्म, और बहुत तो नहीं नहीं, इतना अच्छा। वहां carry on, सिनेमा sorry. हॉल में ना इस सीन पर एवरीवन वाज जस्ट क्रैकिंग अप इतना, और इतना कि सांस नहीं आ रहा था क्योंकि हंसी हम्म, रुकती ही नहीं थी। वो अगला कैंडिडेट आ जाता था, वो अपना वो अपना क्रैक कर रहा होता था। इट वाज दोज 5 minutes वर जस्ट वाओ। वहीं से आई थिंक हम्म, द मूवी वन इट फॉर मी। यार, यार, हम्म, वो राजू हिरानी और उसका ये जो ऐसे थोड़ा ऐसे स्टूपिड सा ह्यूमर होता है ना, हर चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। एक हम्म, चीज को बहुत सिंप्लीफाई करके उसका फिर मजाक उड़ाता है। तो किसी भी मूवी में ले लो, वो थ्री इडियट्स में इंजीनियरिंग लेकर उसमें छोटी छोटी वो न्यूआंसेस ढूंढकर और उन पे कमेंट्री करता है, सोशल कमेंट्री, एंड आई थिंक ही डज इट रियली वेल। हाँ, ये तो उसका स्टाइल बहुत बढ़िया है यार, राजू रानी का ना, हाँ, लाइक हिज और स्टोरी वो टेलिंग थोड़ा स्टाइल, दैट्स लाइक व्हाट कीप पीपल कीप टॉकिंग अबाउट।
हाँ, and I feel like that's kind of style that I like. क्योंकि हम्म जैसे एनिमल थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी मेरे लिए, राइट? मुझे आई एम अ हम्म सिंपल गाय, और मुझे बस हम्म सिंपल सी मूवी चाहिए जिसमें मैं थोड़ा एंटरटेन होके हंस लूं, राइट? आई डोंट वांट टू बी लाइक गोइंग इनटू द न्यू वो डार्क 12 न्यू कॉन्स। इसमें बस वही लिनियर स्टोरी है, बहुत कोई ऐसे बड़ी वो है नहीं उसकी डेप्थ, एंड इट्स जस्ट वो छोटी छोटी चीजों में फन ढूंढना, एंड हम्म दैट्स व्हाट डंकी। वो जो उन्होंने दिखाए थे जहाज रूफटॉप्स पर लोगों ने लगाए होते थे, आई डोंट हम्म नो इफ यू एवर सीन इट, बट I've seen it. I've seen it. दे आर रियल, आई डिडंट नो दैट। अब हमारे गांव में होता था। बट वो आई थिंक लोगों ने ऐसी शौक के लिए लगाया होता था, मुझे पता नहीं ये फैक्ट है कि नहीं है कि कोई बाहर गया नहीं, होता था उनके गांव से। सो बेसिकली हम्म बेसिकली मैंने फिर वो देखी, एक शाहरुख ने इंटरव्यू किया था इनका, तापसी का और राजू ईरानी का, राइट? सो इट वाज द थ्री ऑफ देम, तो और उसमें राजू हिरानी ने बताया कि वो पता नहीं कहाँ जलंधर गया हो समथिंग, आई डोंट नो मैन, वो वहां पर ऐसे घर, दो घरों पे ऐसे लगे हुए थे ये, तो ही गॉट क्यूरियस, तो उसने जाकर नॉक किया कि ये क्यों लगाया होता है आप लोगों ने? तो वो फिर उन्होंने बताया कि जिसका बेटा फैमिली मेंबर बाहर चला जाता है, हम फिर ये लगवाते हैं उसमें। कोई लोग उसमें ऐसे मोस्टली लाइक टैंकी वो क्या वाटर, वाटर जो होता है वो डाल देते हाँ, हैं अंदर, पानी। वो ताकि वो इफ यू यूटिलाइज कर रिमेम्बर, सके। पहले वो कोई एक कार्टून आता था, आई कांट रिमेम्बर, वो फ्लाइंग बेयर होता था, फ्लाइंग बेयर, उसको बलू उसका नाम होता था, हाँ, कैरेक्टर का नाम टेल्स, बलू। हाँ हाँ, टेल्स फिन। यस। तो वो मैं जब गया था वो अपने गांव, तो वहां पर ऐसे वो बड़ा ऐसे वियर्ड सा एरोप्लेन जैसे शेप का मुझे लगा। तो मैंने पूछा किसी से, क्या कहते ये बलूता जहाज है। तो बट आई डेंट नो कि वो ऐसे। आई थिंक दिस इज लाइक वी टॉकिंग अबाउट इट से 10 of 20 years ago. That's हम्म when the film was based on, right? हम्म। 20 years ago, right? बट वो 20 ईयर्स में ना मैंने एक चीज नोट की है कि ऐसे कॉन्टिन्यूटी पे ज्यादा वो नहीं दिया, उसने नहीं दिया था, डायरेक्टर ने, एडिटर ने, वट, क्योंकि वो 20 ईयर अगो भी जो गाड़ी का, मे बी इट्स समथिंग आई नोटिस मोर, वो जो गाड़ी का मॉडल दिखा रहे थे, इट वाज एन एक्स सिक्स वाज नॉट रिलीज 20 ईयर्स अगो, BMW X6। और ऐसे दो तीन पॉइंट्स थे, पर आई वाज थिंकिंग यार ज्यादा डिटेल्स पर Yeah, इसने वो वो नहीं ऐसे दिया। तो बहुत कुछ था। I that's what I'm saying. Like this is not the best work of Raju Hirani, or like जो भी whoever was responsible for all this. हम्म। But yes, you can see Raju Hirani's storytelling in this film, but this हाँ। is not the best work. Best work would have been Munna Bhai. Where हम्म। best work would have been PK. Best work would have been Three Idiots. Like थ्री इडियट्स। you can't say थ्री इडियट्स में मैं ऐसा कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं निकाल सकता। इसमें वो निकाल सकते हैं। इसमें वो बुढ़ा होकर वापस आता है, उसकी माता फिर वैसी जवान बैठी होती है, हम्म। वो जीन्स पहन के। बेबे तो फिर तू पहले हाँ, पैंटे पहन के जाती होती है, फिर बेबे जीन्स पहनने लग जाती है। वो इट ऑल्सो शोज कि जो 20-30 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थे, जो तब हम्म, सोसाइटी जिन चीजों को देखती थी कि ओ मॉडर्न, लाइक पीपल मूव ऑन, राइट? सोसाइटी मूव्स ऑन, तो वो जो जीन्स है वो इतनी नॉर्मलाइज हो गई है नाउ, इट्स लाइक लाइक जो जो इंग्लैंड में आकर इंडियंस बसते हैं समटाइम्स, वो वहीं पे दे स्टक इन द 80s, दे स्टक इन व्हेन एवर दे केम, राइट? वो वहां से मूव ऑन नहीं हो पाते, एंड देन लाइक इंडिया इन द मीन टाइम हैज मूव्ड ऑन देयर इन 2023, राइट? और इट ऑलवेज हैपेंस, लाइक यू ऑलवेज सी इट, ऑफ पीपल जो ज्यादा नहीं गए होते, दे आर ट्राइंग टू टीच लाइक किड्स वैल्यूज फ्रॉम द 1980s। हाँ। और वो जो इंडिया में किड्स बैठे होते हैं उसी एज में, वो वैल्यू वूल्यू तेल लगाकर वो खा भी हाँ, जाते हैं उसको। पका एग्जैक्टली, पकू के खा जाते हाँ, हैं। बिकॉज टाइम हैज मूव्ड ऑन।
हम्म। बट वो हाँ, ये तो होता है हमेशा, लाइक पीपल हु बीन हियर लाइक 50 इयर्स अगो, वो अभी भी वही, जो 50 साल पहले जो वहां पर चलता था ना, वही माइंडसेट भी हम्म वैसे ही रखेंगे। और बाकी यहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अपने घर पर और वो इंडिया जैसा माहौल रखेंगे 50 साल पहले वाला। हाँ, हम्म। और वैसा इंडिया और में कोई इंडिया में होगा वो नहीं। नहीं है। हाँ, हाँ, वैसा नहीं है, तो वो लाइक या 10, तो वो आई जो थिंक। जीन्स वाला सीन था, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, कि वो इंग्लैंड बैठा हम्म। सोचता होगा कि वो शलवार कमीज पहन ली होगी मम्मी ने, बट लाइक हम्म। टाइम इज मूव्ड ऑन, तो हाँ, मम्मी ने तो वही जीन्स पहनी वो हुई है। उसकी जो जो दूसरा लड़का था, जो सरदार नहीं था, दो दो थे ना, एक सरदार था, एक दूसरा लड़का था, उसका मुझे नाम नहीं पता। हाँ हाँ अम, हाँ। हाँ, तो वो जब आता है, उसकी मम्मी पहले भी उसी टाइम की होती है, और वापस जब वो आता है 25 साल बाद, तब भी बिल्कुल ऐसे होते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ चेंज दिखाएंगे या माँ बाप हम्म नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो खुद इतने बुढ़े होकर आए ना। हम्म अम, तो मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। हाँ, ऐसे और कंटिन्यूटी के अ, रहे हैं प्रॉब्लम। हाँ, और फिर वो जब तापसी पन्नू के पेरेंट्स वापस आते हैं, तो वो दोनों ही मतलब बहुत एकदम बुढ़े होते हैं, विच वुड बी द केस, कि वो हाँ, दोनों वो ही सही मतलब चल फिर दिखाया है। नहीं। हाँ। या वो फादर तो आई थिंक ही couldn't even talk anymore, like he didn't, वो तो he was like almost like in a, क्योंकि वो कुछ हम्म। बोले भी नहीं। वो मम्मी was a bit talkative but she couldn't, she was old, ऐसे सही दिखाया था। वो मम्मी हम्म। वही थी जो थ्री इडियट्स में ब्लैक एंड व्हाइट में हाँ, हाँ, दाल की हाँ। कीमत पता है मुझे तेरे को बेटा? हाँ, मुझे भिंडी तो इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान, पनीर तो इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पे बिकेगा। आई कांट रिमेम्बर यंगर वर्जन कोई और था, और वो, वही थी, अच्छा, बट ये वहां वो उसका उतना फील नहीं हुई थी। वो जब अपने पापा बुड्ढे तो वाले, उसका डेफिनेटली डिफरेंट था, क्योंकि हाँ, वो ही लुक ऐसे, डिफरेंट। वो भी बैठा हुआ उस टाइम पर शायद व्हील चेयर पे बैठा था, या जो मैंने देखा था मुझे याद नहीं है। हम्म पर और वो बैठकर वो बोल रहा था ना कि फौजी को बचाया और वो वापस ही नहीं आया, 10 महीने हो गए, और टेप रिकॉर्डर भी नहीं देकर गया। तो हाँ ही वॉज अ डिफरेंट कैरेक्टर, और ये जो हाँ, बाद में मुझे भी दिखाया वो लगा। डिफरेंट था। हम्म। यार वो मैं भी यही डिफरेंट था। सोच रहा था कि वो बदल दिया है, बट हम्म। दे हैड टू, क्योंकि वो चेंज करना भी चाहिए था, इतना टाइम गुजर गया था। हाँ, 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 लाइक हाँ, यू हाँ। नीडेड टू लाइक शो अ बिट ऑफ डिफरेंट पर्सन। हम्म। और वो जो जीन्स वाली मम्मी थी, वो तो बिल्कुल ही बड़ी नहीं हुई थी। इवन तो हम्म। वो जब आया है कितने 20 साल बाद, 30 साल बाद, ही वॉज ओल्ड। 25 25। 25 साल बाद तो वो खुद बूढ़ा हो रखा था, बट हम्म। हिज मम वाज लाइक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, बस थोड़े ग्रे हेयर आ गए थे। हम्म। ब्रो, हाँ, एक वो चीज, एक एक मुझे चीज का वो भी दुख थोड़ा, हुआ। सॉरी, कैरी ऑन। Shall I carry on or do you wanna? या कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। अब मुझे दुख ये हुआ कि विकी कौशल का बहुत कम था उसमें टाइम, हाँ, टू यस, शॉर्ट। मुझे वो पार्ट अच्छा नहीं लगा एक्चुअली। क्योंकि आई आई थिंक इट डिड, आई एम नो राजू क्या हिरानी, आई डोंट नो। क्या हमने स्पॉयलर्स देने हैं या नहीं? अरे, स्पॉइलर अब हो गए यार, 2 3 दिन हो गए, जिसको देखनी है वो देखेगा, जिसको नहीं, स्पॉयलर्स लिख देंगे ना उस पे, वीडियो पर स्पॉयलर्स। स्पॉयलर्स अहेड बस काफी है। हम्म। तो वो जब मुझे वो इतना अच्छा इसलिए नहीं लगा, इट डिडंट क्वाइट फिट वेल फॉर मी। वो जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए कॉमेडी चल रही थी, आई वांट टू गो टू लेबोरेटरी। हम्म। और He want to go to laboratory. लेबोरेटरी, और क्या, बर्मिंगम हेयर आई कम, हाँ, बर्मिंगम हेयर आई कम। बट फिर वो इट डिडंट क्वाइट फिट मेरे को, वो भी, उसका इंग्लिश टीचर का रोल भी इतना, बोमन ईरानी का भी रोल इतना बहुत ज्यादा कंपेलिंग नहीं लगा। हम्म कि जैसे फिर उसके वो उसका हार्ट बदल जाता है, वो अब दिखाया सही है, वो करते ऐसे ही हैं कि मतलब वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वाले आकर दिखाते हैं कि 90% सक्सेस रेट, और हर जगह ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं कि ये
99% सक्सेस रेट है। मतलब झूठ मूठ ही बोल देते हैं, एक जने का कुछ हो जाता हम्म। तो वो पर बट इट डिडंट मुझे क्वाइट फिट वेल फॉर मी कि वहाँ कॉमेडी मुझे चल ना रही वो, थी हाँ। और फिर वहां पर एकदम से ट्रेजेडी हो जाती है। विक्की कौशल का रोल कॉमेडी में भी दिखाया है, सीरियस ही, और फिर उसके हम्म। बाद वो सीरियस दिखाया। इट इट वाज अ लिटिल बिट फोर्सफुल फॉर मी वहां पर, उस थोड़े से पैच में। मुझे लगता है थोड़ा हमें मतलब हम तो वी लाइक विकी कौशल, राइट? बट एज अ हम्म, न्यूट्रल व्यूअर अगर अगर देखो तो वी डिडंट गेट द ऑडियंस डिडंट गेट इनफ टाइम टू स्टार्ट लाइकिंग हिम, राइट? प्लीज क्योंकि हम थिंक, हमें तो शुरू प्लीज से ही स्पीक फॉर पसंद है। योरसेल्फ। और यू व्हेन डोंट यू लाइक से हिम? हम विकी कौशल वी लाइक यू इट, डोंट लाइक विकी स्पीक कौशल? फॉर योरसेल्फ। आई मीन, मैं घर के भेद वीडियो में खोलना नहीं चाहता लाइव वीडियो पर, but you should know why I don't like him. But you can ignore that and carry on. He's a good नहीं बट actor. तो मैं एक्टिंग की ही तो बात कर रहा हूँ। Hmm. जैसे जैसे मैं आई डोंट लाइक, फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी का भी नाम ले देता हूँ, आई डोंट लाइक रणवीर सिंह, राइट? Of course. किसी का भी एंड नाम ले दिया आपने क्या? किसी का भी ले दिया, लाइक देयर इज नथिंग टू इट। व्हाई डोंट आई लाइक हिम? उसको एक्टिंग नहीं आती, एक ही रोल होता है हमेशा, हाइपर एक्टिव, एक्सेप्ट इन लुटेरा। आई थिंक आई सेड दिस इन प्रीवियस I पॉडकास्ट। disagree. वो acting काफी उसकी versatile है, but like चलो, you like Vicky Kaushal, I like Ranveer Singh. क्या कर सकते हैं? Hmm. तो Okay, carry on. एनीवेज, उसको अगर introduce नहीं कोई करा नहीं ढंग भी से। हाँ, उसको ऐसे, उसको थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम अगर मिलता ना, फॉर द ऑडियंस टू लाइक स्टार्ट लाइकिंग हिम अ बिट, जैसे वो थ्री हाँ हाँ इडियट्स में हाँ ले लो। हमें कितने अच्छे लगते हैं वो तीनों, फरहान, हाँ। राजू और राजू रैंचो। रस्तोगी, राजू रस्तोगी, रैंचो। रस्तोगी, तो वो वी हैड मिस्टर अ बिट ऑफ, रस्तोगी, let's वैसे have a तो cup of tea in my office. ओ आई नीड टू वॉच थ्री इडियट्स एंड मुन्ना भाई अगेन। पर मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं फिर से डंकी भी देखूं जाकर, इट वाज सो गुड लुक मैन। एट वो थ्री इडियट्स के जो कैरेक्टर्स थे, सारे के सारे, राजू रस्तोगी, फरहान फरहान समथिंग, नाइट्रेट, फरहान नाइट्रेट। फरहान राइटरेट, एंड अपना रणछोड़ दास चांचड़, श्यामल दास। हाँ, रणछोड़ दास, रणछोड़ दास श्यामल चामल दास दास छाछड़। चांचड़, एंड कटरीना कैफ, ओ सॉरी, करीना कपूर, अम, और उसकी बहन भी वो, आई कांट रिमेम्बर नेम, वो जस्सी जैसी कोई नहीं वाली, अम, हम्म। और बोमन ईरानी, लाइक आयरॉनिक कैरेक्टर था उसका कितना, वो हाँ। वो वाला क्या कहते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, वायरस। वायरस तो बोमन ईरानी था ना। मिलीमीटर हाँ वो जो कपड़े प्रेस करता है, जो हाँ 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 हाँ। मिलीमीटर, एंड फिर वो बाद में कहता है बड़ा आपका होके मिलीमीटर अब सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। हाँ। हम्म, मतलब these character like stick to you, and this guy, वो तोफू कबूल कीजिए, तोफू कबूल करें, साइलेंसर, उसका नाम क्या था? चतुर। साइलेंसर, चतुरदास। चतुर, एंड उसकी हाँ स्पीच कितनी आयरॉनिक थी, मतलब इट्स लाइक नाउ यू कैन लाइक जस्ट उसके मीम बन सकते हैं यार, हाँ उसके मीम हाँ बन हाँ सकते, हाँ अगर किसी चीज का मीम बन जाए तो दैट मीन्स इट्स गॉन ऑफ, लाइक इट्स हाँ। सुपर, लाइक इट्स इट इट बिकम्स अ इट पार्ट डज, ऑफ द कल्चर। या हाँ। तो वो थ्री इडियट पार्ट ऑफ द कल्चर बन गया। डंकी इन माय ओपिनियन डजंट स्टैंड देयर। हाँ, वो हो सकता है, वो अब आइकॉनिक तो ऐसे 3 4 5 साल बाद पता चलता है, लेकिन ये जो इंग्लिश बीच में सिखाते हैं, ये सीन्स आर आइकॉनिक। ये इनके हम्म, मीम्स हो सकता है बन जाए कि इंग्लिश इन 2 मिनट्स, यू नो। ओए होए होए, ओए होए होए, इसकी इंग्लिश, हर इंग्लिश ओए होए, हाय हाय हिज हाय। इंग्लिश ओए होए होए। हाँ, That could be it. तो ऐसे बहुत से सीन्स हैं, लाइक आई थिंक दे हैव मीमेबिलिटी। In my opinion, though, Rajkumar Hirani.
and Shah Rukh Khan. They are quite brave to bring out a film like this who touches on immigrants. क्योंकि you not every Indian or Hindi Urdu speaking person is gonna um, be able to connect to the story because not everybody goes um, out of India. And Hmm. not everybody wants to go out of India. This film might connect with Punjab, Haryana, Gujarat, Gujarat. and some part of South. Hmm. If if they like Hindi movies, if any one of them like Hindi movies, because Punjabi cinema is a thing. Gujarati plays होते हैं. South का अपना industry है, मतलब different languages का. Hmm. कॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड अम, अब हरियाणा है जो अभी नया नया इसमें राइज कर रहा है जो कि बाहर जाने में थोड़ा सा डंकियां लगाने में अभी थोड़ा थोड़ा राइज कर रहा है नहीं तो Hmm. अभी तक पंजाब डंकियां लगाता था एंड पंजाब दिस और इज व्हाई आई गुजरात. थिंक इट्स क्वाइट ब्रेव हम्म हाँ. Punjab and Gujarat were up there. हाँ पंजाब और गुजरात तो बहुत पहले से पंजाब भी बहुत पहले से और गुजरात भी एंड इफ यू थिंक अबाउट इट Like वो डंकी में भी all वो of Leicester is Gujaratis. और ये सारे ये उसी रूट से आए थे back in the days. या सो वो जो उसमें लॉयर होता है वो भी गुजराती है और ये तीनों पंजाबी होते हैं Hmm. उस टाइम हरियाणा इतना एक्टिव नहीं हुआ था डंकियां लगाने में हाँ. Now I know a few. I don't know anyone. एंड एक बात ये भी है कि जब वो जाकर वहां पर कहता है कि आई एम नॉट गोना से कि इंडिया में मुझे खतरा है Hmm. आई आई डिड नॉट फील वहां पर जिंगोइज्म वाला कुछ भी था आई मीन हाँ. उस वहाँ तरह नहीं मतलब था ही जैसे वॉज इन द पहले. आर्मी Hmm. उसको ऐसा शौक ही नहीं था बाहर जाने का ये बाकी सबको तो मजबूरियां थी कि मुझे बाहर जाकर रहना आई आई बिलीव अगर मैं भी उसकी जगह पर होता तो आई वुड हैव सेड द सेम थिंग कि भाई मेरे को खतरा खुतरा नहीं है मैं जा रहा हूँ वापस चाहे हाँ. वापस भेज दो यहाँ रखना तो मैं रह लूंगा पर मुझे वापस भेजना तो भेज दो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पर मैं खतरा खुतरा नहीं बोलूंगा Hmm. और हाँ, आई डेंट थिंक इट वाज जिंगोइज्म. जैसे आजकल तो बढ़ा चढ़ा के ऐसे कहीं भी जय हम्म, हिंद. इवन इन पठान पठान में भी तो ऐसी हम्म, बेकार में थोड़ा दिखाया हुआ था कि लाइक ओवरली पेट्रियोटिक सोल्जर और हम्म। व्हाटएवर. तो अम, इसमें मतलब नॉर्मल था कि सोल्जर्स तो आप. होते ही है ना पेट्रियोटिक सोल्जर्स हम्म. तो सारे पेट्रियोटिक होते हैं मतलब कि कुछ को छोड़कर नॉट सेइंग कि वो कोई देशद्रोही होते हैं नो आई एम सेइंग कि कुछ कुछ लोग थोड़े इट्स पार्ट ऑफ न्यूट्रल योर भी जॉब होते टू हैं बी. हाँ, इट्स हाँ पार्ट ऑफ योर जॉब टू बी पेट्रियोटिक. यस 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 तो सोल्जर्स की ब्रो इफ आई डोंट नो इफ यू नो बट सोल्जर्स की ना लाइफ अलग हो जाती है मतलब दे आर नॉट सिविलियंस एनीमोर उनकी लाइफ ही अलग होती है उनका जीना मरना ही ये लिखा होता है कि भाई आई वांट टू लिव फॉर माय कंट्री और डाई फॉर माय कंट्री और हम्म. मतलब मैं छोटा होता था मेरे अंदर भी बड़ा सोल्जर वाला कीड़ा होता था तो मुझे भी ये होता था जाकर ना ऐसे उस टाइम इंडिया पाकिस्तान की वॉर चलती थी तो मुझे लगता था जाकर सरहद पर 500 पाकिस्तानी मार देने फिर यहाँ पर गोली खा के मर जाना फिर परमवीर शहीद. चक्र मिलेगा हम्म, हाँ. ना लाइक इट. वो मुझे तो वो भी ट्रू टू रियल लाइफ लगा था. लाइक आई अंडरस्टूड व्हाई उसने अदालत में बोला कि नहीं, मुझे कोई डेंजर नहीं है, वैसे वीजा देना है तो दो. और उसने फिर. हम्म, और जो लोग बोल रहे हैं कि इट्स अनरियलिस्टिक कि जज क्यों, व्हाई वुड जज ट्राई टू पुट वर्ड्स इन हिज माउथ. हम्म, आई थिंक जजेस कैन ऐसे कई बार ऐसे यूके में होता है कि वो थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं. जजेस की मैं नहीं बोल रहा, बट अथॉरिटी वाले फिगर्स आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स कि वो थोड़ा सा आपको एक उस पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं. इफ दे फील एम्पैथी हम्म, टुवर्ड्स यू कि यार ये घर जाके इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, तो they would try to put you on हम्म। a little bit of a line कि अगर आप इस तरह बोलोगे तब मैं आपको असाइलम तो दे आप कुछ सकता सोच हूँ, सकते हैं वरना नो चांस, देयर इज नो ग्राउंड टू गिव यू असाइलम. हम्म, तो
like there was some criticism regarding that scene. Uh, but I like that scene. I think वो अब ऐसे फिलोसॉफिकल बातें होती है ना कि जैसे मैं हूँ ऑन वन साइड, अगर मैं सोचूं तो आई एम एंटी इमिग्रेशन होता जा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, राइट? हम्म, इवन दो आई एम द चाइल्ड ऑफ माइग्रेंट्स, बट अब जैसे बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं तो मैं ऐसे देखता हूँ कि यार ये भी ऐसा हो गया, लाइक ये आकर इन्होंने गंद कर दिया, ऐसे को कचरा होता था ऐसे ही सड़क पे फेंक देते हैं, यू नो लिटिल थिंग्स वर आई मे बी बीइंग रेसिस्ट। हम्म। बट ऐसा मेरा भी थोड़ा दिल को सॉफ्ट कर दिया कि यार अगर अगर किसी का हक बनता है आकर पैसे कमाने का, वो एक हाँ, वो एक देन लाइन इट्स, बोलती है कि ये इनकी धरती नहीं है, ये रब की धरती है और हम हाँ सबका हक है। वो बहुत बढ़िया हाँ लाइन थी वो, मतलब या एग्जैक्टली, इट्स नॉट रियलिस्टिक बट इट वाज अ गुड लाइन एंड इट शुड बी हाँ रियलिस्टिक एक्चुअली, दैट्स इट व्हाट शुड बी, क्योंकि आई। वो फिर एंड में लिखा आया था कि 150 साल पहले कहीं भी वीजा नहीं लगता था, कोई कहीं भी जाने के लिए वीजा नहीं लगता था, लाइक दैट शुड बी अ ड्रीम। लेकिन फिर उसमें वो आ जाता है सिक्योरिटी, फिर आप टेररिज्म को कैसे रोकोगे, फिर ये सारा कुछ आ सिक्योरिटी, जाता है। टेररिज्म और किसी, यार वो फिर वो बात आ जाती है ना कि कई कंट्रीज ऐसे अपने आप को, या कई, इफ यू टॉक अबाउट इंडिविजुअल लेवल, कोई कोई बंदा अपने आप को नहीं मेंटेन करता इतना अच्छा, और एजुकेट नहीं करता अपने आप को, कुछ has got destructive tendencies, किसी की ऐसी हैं, तो तो अब वो दूसरा बंदा नहीं ऐसा रखना चाहता, वो अपना घर सिक्योर कर लेता है, तो दूसरा बंदा नहीं आ पाता। पर हम्म। बट देन अगेन, ये वाला इंडिया पर तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ये लोग आकर लूट कर गए थे इंडिया, तो वो तो दैट्स अ फैक्ट। अब लेट्स, इनका तो अपना फॉल्ट है। हाँ, तो बट लाइक या ओवरऑल इट मेक्स सेंस बॉर्डर्स वगैरह, बट इट शुडंट बी, इफ इन अनदर वर्ल्ड, इफ देयर इज अ इन एन प्लेस वेयर देयर आर आइडियलिस्टिक नो वर्ल्ड, borders, या हाँ या हाँ, तो जिसने जहाँ या जाना है जाए। दैट वाज, yeah, that was one of my point, that like I think Raju, no, I was gonna say Raju राजू Rastogi, हिरानी, but Raju Hirani हाँ, and Shah Rukh Khan, they did they 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 appeared brave. तापसू, तापसी पन्नू भी, नहीं, तापसु पे आ रहा हूँ मैं, but like first of all, Shah Rukh तापसू। Khan with the star power he has, हम्म। with the star power he has, and Raju बट Hirani मूवी उस तरह with, से परफॉर्म नहीं कर रही, व्हाई इज दैट? नहीं कर रही, हाँ नहीं कर रही, बट नहीं नहीं, सैड। वो उस पे भी आते हैं, उस पे भी आते हैं। पर व्हाट आई एम सेइंग कि वो ब्रेव हैं इन दिस वर्ल्ड, कि जो ये अभी जो एरा चल रहा है सिनेमा का, उसमें ऐसी मूवी बनाने के लिए, एक तो वो मास पॉपुलेशन उसे समझ नहीं पाएगी कि क्या इमिग्रेशन पे मूवी बना दिया। इससे पहले भी दो तीन मूवीज आई थी, एक आई थी अजय देवगन की तेज, विच बॉम्ब्ड ऑन द बॉक्स ऑफिस, हम्म। जो सुनी भी नहीं, आई और चली गई। और इससे पहले एक मूवी आई थी डंकी के ऊपर ही, सनी देओल की, कॉल्ड काफिला, वो भी हम्म। आई और गई और पता ही नहीं लगा, इट इट जस्ट गॉन, इट वाज जस्ट गॉन लाइक। मैंने तो देखी थी, मैंने तेज भी देखी थी, तेज आई डिडंट क्वाइट लाइक एज मच, बट डंकी, ये जो सनी देओल की थी, वो बहुत पहले आई थी, आई वाज अ किड, एडवेंचर सा देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो आई क्वाइट लाइक दैट, मतलब नॉट क्वाइट बट आई लाइक दैट फिल्म, लाइक ओके फाइन। तब तो मतलब मैं इंडिया में ही था, और वेल, इन दिस एरा जहां पर वो एनिमल जैसी मूवीज चल रही है, एकदम फुल मासी वायलेंस चल रहा है, धक 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 धक, और वो जवान पठान अभी सलार के साथ compete कर रही है मूवी हाँ डंकी। सलार, तो सलार इज ऑब्वियसली गोना विन दिस, बाय होप कि राजू हिरानी एंड शाहरुख खान की वजह से, मे बी स्टोरी टेलिंग की वजह से, लोग आए एंड मेक दिस सक्सेस, सो हाँ हाँ। वी हैव लाइक अ बिट ऑफ अ बैलेंस ऑफ ईच अदर, एक तरफ मासी भी हो और एक तरफ लाइट हार्टेड कॉमेडी भी लाइट चले, नहीं हार्टेड, तो ऐसी मूवीज हाँ। बनानी बंद कर देंगे। क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि अगर ये फ्लॉप हो गई ना बॉक्स ऑफिस में, आई थिंक
डायरेक्टर्स एक्टर्स वोंट डेयर, आइंदा फिर ऐसी मूवीज बनाना छोड़ देंगे कि यार फायदा नहीं है, हाँ, वैसे जबकि अभी फ्लॉप तो इतनी आई अच्छी थिंक मूवी है। बनी तो आई थिंक रिकवर हो जाएगी, वो तो हो बट गई, इसका बजट थिंकिंग इतना था अबाउट, नहीं। इसका बजट हाँ, था ओनली 35 करोड़। 102, हाँ, 135, 135 नहीं, करोड़, 35 करोड़। आई थिंक 135 बाकी करोड़, बाकी शाहरुख कांट की बी। फीस होंगी, बाकी शाहरुख की फीस। हाँ, और दिस इज वेयर आई वो वाज कमिंग वो टू कि वन अगर ये करोड़ सिर्फ उसकी इतना फीस है। ही, कितना, मतलब अब मैं ये देख रहा हूँ, एक इट्स जस्ट पता नहीं कितनी कितनी ट्रू है, बट इट सेज बजट बजट 85 करोड़, और सालार का बजट 400 करोड़। हम्म। हाँ, तो वो अब तो ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ज्यादा पैसे ले रहा है, वो भी बहुत पैसे ले रहा होगा। वो जो सलार वाला हीरो है, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाता हूँ, इज प्रभास तो नहीं क्वाइट नाम। फेमस। प्रभास, यस, प्रभास। प्रभास, हाँ। अम, उसकी बाहुबली आई थी, और फिर उसकी जो मूवी अभी बॉम्ब हुई है बॉक्स ऑफिस पे, आदि पुरुष, बट सलार इज, आई थिंक सलार विल विन द रेस ऑफ द बॉक्स ऑफिस, हम्म। 100%। रेस क्या, मतलब क्वाइट अ मार्जिन से ऐसे विन करेगी। But then again, like Salar is a massive movie, and this is only going to attract a few. Um, that's why I think Raju Irani and Shah Rukh Khan has done a brave job to pick a topic some like this, and do a plain like storytelling with a light-hearted comedy and a little bit of a twist and turns. Not much, but a little bit. Coming to Tapsi Pannu, initially I did not think she did. I did think she was a bit of a misfit in the film, but हम्म। as we progressed along, in few scenes, she actually did look the part, and no, that didn't stick to just few scenes. वो जब एक बारी पार्ट लगने लगी मूवी का, तो देन शी एक्सेल्ड इन इट, एंड देन एंड में तो वो जैसे पंजाबी आंटियां बातें करती हैं, वो उसी तरह बातें कर रही थी। चल ओए, तो झूठा, वो तू तो कह रहा था प्लेन से छोड़ेगा। हाँ, मैं, हाँ, हाँ, यू हाँ। नो, द काइंड ऑफ द एक्सेंट, द लहजा was हाँ, was caught perfectly. हाँ, वो है ना पंजाबी, दैट्स व्हाई। हाँ, पन्नू, हाँ, तापसी वो पन्नू। वो मेरा तो जैसे विक्की के साथ था, वैसा मेरा तापसी के साथ भी। आई हैड अ बायस फ्रॉम द बिगिनिंग, सो लाइक हम्म, फॉर मी शी वाज लुकिंग द पार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, especially now हम्म, that after Pathan, another actress is out of the uh, picture anyway. Uh, हम्म। तो आई थिंक उसकी जितनी भी मूवीज होती हैं वो हमेशा शी इज वेरी वो हमेशा छोटी मूवीज ही करती है, शी नेवर डज लाइक हाँ, हाँ, मास हाँ। मूवीज, शी नेवर डज। और छोटी मूवीज होती हैं, लाइक शी विल वर्क विद not so well known actors, हम्म। but do good movies. तो हाँ, पर वो मेन लीड में होती है हमेशा। हाँ। मतलब अभी से जब से देखना उसको, जो तीन चार पांच उसकी मूवीज आई हैं, सब में रिसेंटली वो हम्म। सब में मेन रही है, वो पिंक के बाद से। हाँ, हाँ। तो आई वाज um, थिंकिंग कि मे बी अब ये क्या, लाइक डंकी माइट नॉट बी गुड बिकॉज अब, या फिर आई वाज थिंकिंग कि तापसी आई माइट नॉट लाइक हर बिकॉज अब आई थिंक फर्स्ट टाइम आई है मेन स्ट्रीम मूवी में, लाइक शी इज नेवर बीन इन अ, ऐसे मेन स्ट्रीम आई मीन लाइक किसी बड़े एक्टर के साथ। एंड पिंक में थी ना, उसके अमिताभ, साथ। हाँ, Amitabh is in his retirement phase. But he doesn't हाँ, pull बट audiences like Shahrukh or नहीं, नहीं, अमिताभ बच्चन डज इट मैन, व्हाट आर यू ऑल अबाउट, अमिताभ वो बच्चन डज इट। Amitabh Bachchan by himself cannot make a movie worth ये ऐसे एकदम 100 200 करोड़ 300 करोड़ पे नहीं लेके जा Yeah, सकता, but not anymore I at think least. he would still, if he was acting in a like masala film, हाँ, I would if he go, if he continued but supported वो by some other big actor.
वो पता है क्या, आई थिंक वो अमित जी ने थोड़ी गलती भी कर ली। ये अब कैसे अपना, अच्छा। ये सारे सलमान, शाहरुख, अक्षय कितना अपना खींच गए हैं करियर को, राइट? अरे अमिताभ तो इतने वो ही भी तो साल खींचे का थे था। यार। अमिताभ तो अमिताभ बच्चन ने भी कितना, खींचा था। अमिताभ must have been like 55 when he started doing like वो वाइट दाढ़ी रख ली थी, and then he started doing like बुढ़ा वो scenes. एज भी डिफरेंट थी। यूर राइट, बुढ़ा लगने लगा था। पर वो एज भी डिफरेंट थी, और वो बुढ़ा फिर वो जचता नहीं था। और अमिताभ बच्चन जी के अपने खुद भी खुद के पर्सनल इश्यूज भी काफी रहे हैं, जिनकी वजह से ही हैड टू डू साइड kind of like supporting roles as like father, but like he still does a hero father. He's not like just as a random koi father. Amitabh Bachchan pulls audience, bro. What are you हाँ, talking about? और Um, पुल, मतलब वो स्क्रीन प्रेजेंस तो है, बट hmm, वैसा नहीं है कि जैसे अब मैंने चेक किया, कभी खुशी कभी गम में ही वॉज 57, राइट? hmm. 57 में अभी ये SR के अक्षय कुमार वो सूर्यवंशी पे हेलीकॉप्टर से लटक रहा है एक बंदा, ये जो है पठान ये जेट पैक्स उड़ा रहा है 57 में, राइट? Hmm. तो वो, आई थिंक ही स्टॉप्ड वे टू अर्ली। अमिताभ बच्चन में भी था थोड़ा लाइक, बट आई थिंक To be बैक देन। fair, if I'm honest, right? If like if we're being brutally honest here, I would not. Shahrukh would not pull me to cinema. Salman would not pull me to cinema now. And the all the other big ones, Ranveer might be Ranveer Kapoor and Singh. Yes, Ranveer Singh as well. What's this guy's name? How's the Josh? Vicky Kaushal. विकी कौशल। Vicky Kaushal might as well pull me to cinemas if he's doing a big film. विक्की कौशल ब्रो, ये इसके साथ आई थी मूवी एनिमल के साथ। विक्की कौशल की नहीं थी, किसकी थी? वेट, नो वन वॉच्ड इट, इट वाज सच a, I have to yet watch it. Oh, Vicky Kaushal की आई थी Sam Bahadur. I watched it. Exactly, Sam Bahadur, you watched it? Yes, Sam Bahadur का अपना वो है. Sam Bahadur is an iconic person, man. You cannot go wrong making a film on that. But however, it's the Indian military rules that मतलब उनके कैरेक्टर को एकदम प्लेन दिखाना है, कुछ भी उनके कैरेक्टर में कुछ गलत मलत नहीं दिखा सकते. ही इज लाइक लिव बाय द बुक, ऐसे दिखाया गया है. तो उनका ऐसे कोई बहुत अच्छी मूवी है. एक्टिंग बहुत अच्छी है विकी कौशल की. लुक लाइक प्रॉपर लाइक सैम बहादुर सर. But then going back to my point, no one went and watched it. It's because शाहरुख it ने, competed with Animal. ये सबके एनिमल ब्रो. एनिमल की इतनी ज्यादा शुरू से ही जब से वो आई थी वो सो ऐसे उसकी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हुई हुई थी मूवी की. सैम बहादुर डिड नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट एनिमल. बट अगर यही मूवी उरी होती और एनिमल के साथ आई होती, आई वुड थिंक कि मैं उरी देखने जाता rather than एनिमल. I और hope so. या टक्कर की होती, काफी टक्कर की होती, क्योंकि उरी भी काफी अच्छी मूवी बनाई. मतलब एकदम मास के लिए बनाई थी ना, मास ऑडियंस के लिए. नॉट लाइक उसमें भी फुल जिंगोइज्म का तड़का लगाया था, हर कुछ करा था. हम्म, उरी वाज अ गुड गुड फिल्म. मुझे अच्छी लगी थी. जिंगोइज्म था. इट माइट हैव इट्स पॉलिटिकल पूरी मुझे रॉन्गनेस इन. एंड में थोड़ी वो लगी थी अनरियलिस्टिक, वो जो पिजन थी ना, आई डिडंट बिलीव इट, वो जो हाँ, तो ड्रोन्स बनाए थे। मैं वही कह रहा हूँ. इट माइट हैव सम ऑफ इट्स रॉन्ग डूइंग, बट इट वाज अ गुड फिल्म ओवरऑल. हाँ, मूवी अच्छी थी ओवरऑल। अगर मैं उसको एनिमल से कंपेयर करूं तो आई माइट हैव गॉन टू वॉच उरी rather than आई एनिमल. होप सो, पर बट आई थिंक यूर द एक्सेप्शन नॉट द नॉर्म, क्योंकि उरी ने भी कोई but सिनेमा they में would इतनी अच्छी still do a lot परफॉर्मेंस of नहीं दी business थी। anyway. But like, well, people are smart. They don't clash their films with each other. Um, but I don't know why, who made the decision of releasing Sam Bahadur in the
एट द टाइम ऑफ एनिमल, बिकॉज एनिमल की हाइप तो बहुत ज्यादा थी, शुरू से ही बहुत ज्यादा थी, स्पेशली फ्रॉम दैट सीन के पापा आप मेरी एक्टिंग करो और मैं हम्म। आपकी एक्टिंग करता हूँ, यू नो लाइक इट, किसी को ऐसे पता नहीं था। गोरी तो होनी थी बट ऐसा नहीं पता था कि वो साइको कैरेक्टर होगा उसका, अब बट वो मुझे फादर सन रिलेशन। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग ना बस ट्रेलर की वजह से देखने गए एंड दे वर लेफ्ट डिसअपॉइंटेड. यस, Me for बट example, आई डोंट नो, कुड दैट्स अ पोलराइजिंग ओपिनियन एनीवे, कि कई लोग डिसअपॉइंटेड थे और कई लोगों को बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ या आई वाज इन द मिडल, मुझे ठीक ठीक अच्छी लगी, आई वाजंट बोर्ड इन वाचिंग दैट फिल्म। हम्म. Well, Sam Bahadur. I wish के Sam Bahadur was a bit more. मैंने देखी नहीं है बट लाइक मैंने ट्रेलर देखा था बाद में. I was like wow, the cinematography was great. And then anyways Vicky Kaushal I like. So I was like it should have had more exposure. I think there's a lot I can talk about just Dunki and uh, other films like Vicky Kaushal's film, Sam Bahadur, Animal, even more, one more time, one more podcast on Animal. But I think we are coming towards the end of this video. Would you say? Because we don't want uh, Okay, sorry about that. we Yeah, don't want audience to just keep watching it. Are we? How long are we? How? 46. How 46 minutes. Oh, then we're not coming to the end of the video, are we? Are we? I'm joking. Let's 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 like ठीक है फ्लो तो अपने अपने दिल दिल की बात होती है बट या I would like to continue talking. I just want everyone about 12 viewers to go and watch Dunki please because Yeah, yeah. I think Then people are please not watch. giving it a chance क्योंकि वो उस तरह के उसमें वो जो हमें आदत पड़ चुकी है लाइक रो एक्शन ठा 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 वो नहीं है so I think people are not giving it a chance but I think people should give it a chance people should uh, promote this kind of cinema थोड़ा हमेशा नहीं it can get a it might get a bit boring for some people but oh another reason to watch it इसके बाद uh, 2025 तक शाहरुख की फिर कोई मूवी नहीं आनी there's gonna be a big gap and तब तक पता नहीं क्या ही आएगी like I think What makes you um, say that? अब कोई आएगी नहीं ना अभी 2024 में there's no release planned for शाहरुख खान अरे वो जब डंकी, जब मैंने सुना ही था ना डंकी आएगी, मुझे ट्रेलर भी इतना कुछ खास लगा नहीं था। क्योंकि मुझे पता था कि लाइक पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोना बी एबल टू कनेक्ट विद इट, एंड लाइक मी माई सेल्फ आई वाजंट एबल टू कनेक्ट विद डंकी, मतलब डंकी जो द प्रोसेस ऑफ डंकी, राइट? हम्म I couldn't connect with it. So, but like when I watched the film, it wasn't as bad. Like it was actually a good film. Turned out to be a good film. हाँ और मुझे भी ट्रेलर से आई वाज क्यूरियस मुझे लगा था कनाडा जाएंगे क्योंकि डंकी आजकल कनाडा जाया करते जाते हैं ना लोग सो दिस Uh, वाज आई गेस अबाउट 30 इयर्स अगो तो अलग डेस्टिनेशन थी तो मुझे लगा कि कोई कनाडा का जर्नी दिखाएंगे mm, बट काइंड ऑफ टू माय सरप्राइज इट वाज इंग्लैंड और उस वजह से भी being someone who's like in touch with England it mm, was another touch where I could relate some more अब शायद कनाडा बैठा बंदा उतना रिलेट ना कर पाए जितना हम दोनों कर रहे हैं mm, राइट yeah. बट I have okay. Carry on. हाँ हाँ हाँ, नहीं बोलो I just have one. I didn't quite understand. वो जब शुरू में इंडिया से निकलते हैं, हाँ तो वो कौन सा रिवर क्रॉस करके जा रहे होते हैं जहां पर इतने सारे माउंटेन्स भी होते हैं और पाकिस्तान जा रहे होते हैं वो शायद। रिवर तो वैसे वो इंडस ही आता है बट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे वर ट्राइंग टू शो शायद दिखा रहे थे कि वो वाया कश्मीर किया उन्होंने ट्रैवल
अगर इंडस रिवर पे ट्रैवल करना है तो दैट इज लाइक आइस कोल्ड वाटर इज आइस कोल्ड हाउ कैन दे और वो सेड लाइक डेप्थ रात डेप्थ भी भर नहीं थी ना, चलते रहे वो तो चल रहे थे, लाइक दे वर वॉकिंग ऑन द सी हम्म, बेड। तो हम्म, इंडस इज क्वाइट डीप हम्म, डिपेंडिंग ऑन द सीजन एज वेल, लेकिन up in the mountains is going to be deep क्योंकि वहीं से that's the mouth of the water of the that's the हम्म, source। वही मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़े थोड़े काफी ऐसे ब्लंडर्स थे इस मूवी में। बट हम्म। देन आई गेस दैट्स I mean, राजू ईरानी स्टाइल कि वो ज्यादा रियल उस तरह नहीं होता, ही लिव्स लाइक इन हिज ओन बबल। वो बस ऑडियंस को फनी दिखाने के लिए हाँ कुछ वो ये डायरेक्टर। तो है like if you think about it if would Munna Bhai MBBS cannot happen in real or could it नहीं, वो कि क्योंकि वो you're a जो medical student can you imagine it happening in a real हो life ही नहीं सकता ना, लाइक इट्स इम्पॉसिबल के वो क्या डॉक्टर रस्तोगी होता है ना उसमें, वो जिस जो उसका एंट्रेंस एग्जाम देता है। हम्म ब्रो हाउ यू गोना डू दैट, और एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपने प्री मेड एग्जाम देने हैं अपने। प्री मेड एग्जाम्स में आपको टॉप नंबर्स चाहिए। आई हम्म थिंक मोस्ट यू कांट इवन सिट एन एंट्रेंस एग्जाम until you have like वो क्या like top grades। ऐसे ही कोई जाके एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं दे अपग्रेड तो सकता। उसने बनवा दिए थे ना वो तो 10th 12th की डिग्री वो तो बनवा देते हैं ऐसे सर्टिफिकेट बनवा दिया नहीं नहीं बट ब्रो, वो एंट्रेंस वेंट्रेंस का सेंट्रल छोड़ो बोर्ड। आई कैन सी कि वो एंट्रेंस भी हो गया और फेक सर्टिफिकेट भी बन गया बट कैन यू सी मुन्ना भाई वॉकिंग इन द मेडिकल क्लास एंड मामू ये क्या कर दिया कैन यू लाइक इट कांट बी अ- ट्रू अगर नहीं, अगर तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है तो ये तो हो ही सकता है। अगर फर्स्ट पार्ट ओके हो गया, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया किसी तरह, अगर वो मानकर चलते हैं तो दैट इज यस इट्स पॉसिबल। मेरी अपनी ब्रो यूनी में इंडिया इज यार, अ कंट्री ऑफ जुगाड़ ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सब कुछ हो जाता वहां पर व्हाट आर यू सेइंग वो ब्रो सेंट्रल बोर्ड एग्जाम में आप कैसे। No, if you say that, apply that much logic, maybe, but वहां पर वो फेक 10th 12th का पहले बन जाता होता था सर्टिफिकेट बन जाता था वो सर्टिफिकेट दिखाया वो ऐसे उस टाइम ऐसे आई डोंट थिंक कि वो जस्ट 20-22 साल पुरानी मूवी है उस टाइम पर वो नहीं था ना कि इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कर रहे हैं सर्टिफिकेट नहीं भी होगा इलेक्ट्रॉनिक स्कैन तो नहीं था और या नंबर भी मैच करके देख रहे हैं शायद मैच करके देख रहे हो या करा भी हो मैच और वो बंदा ही ना गया हो जिसका एक्चुअल में वो नंबर था वो गया ही ना हो मेडिकल लाइन में वो किसी और लाइन में चला गया हो तो हाँ इट इट कुड हैपन लाइक दिस इज जुगाड़ राइट हाँ, द थिंग इज आई गेस हो, मैं ना हम्म ये आई एम नॉट गोना से इट ऑन ऑन दिस स्ट्रीम, दिस इज समथिंग आई एम गोना हम्म टेल यू ऑफ स्ट्रीम। बट वो जो बोल रहे हो ना कि "ए, मामू क्या कर रहे है तू, क्या ये हो क्या रे, ये क्या हो रहा है", हम्म दैट कुड, मतलब मैं आई कैन सी दैट हैपनिंग। ओके बट देन वो अपनी डेड वो कहता है कि अपनी डेड बॉडी ले आओ अगर लानी है तो वो तो भाई कौन अपनी डेड बॉडी ले आता है व्हाट इज दिस यार ये तो नहीं हो ब्रो सकता ना रियल लाइफ में सर्किट मिलना इम्पॉसिबल है, अगर तो हम्म, सर्किट मिल जाता है ना किसी को रियल लाइफ में, हो जाएगा भाई ब्रो सोलमेट, ऐसा ऐसा बंदा चाहिए, लाइक हम्म, एवरी लाइक लाइफ में अगर एक सर्किट हो ना तो कोई नहीं, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम्म, यू नीड अ फ्रेंड लाइक दैट। हम्म, bro. Would बट you आई, say अब पता नहीं अगली कौन सी फिल्म आनी है राजकुमार हिरानी की, बट आफ्टर सीइंग डंकी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि लाइक आई लाइक हिज स्टाइल। मुझे पीके इतनी अच्छी नहीं लगी थी। पीके what makes you say that? ब्रो, एक तो वही बात है कि वो परेश रावल की तब मूवीज इसी टॉपिक पर आई थी एक दो, एक ओएमजी आई थी और एक और आई थी धर्म संकट में।
वो बाद में आई थी धर्म संकट में। वो बाद में आई थी, बट लाइक दे ऑल, चलो फिर ओएमजी ही, बट एक तो वो टॉपिक वाज द सेम। um then आई फील लाइक थोड़ा ज्यादा दिखाया था यार, लाइक इट वाज अ बिट कंट्रोवर्शियल एज वेल। किसी हम्म। का, किसी इट्स समवन्स रिलीजन, राइट। ओएमजी में अच्छा दिखाया था, ओएमजी में अटैक किया था एक बंदे को लेकर, एक बाबा जी को लेकर। इसमें ऐसे मुझे फील होता है कि पूरे थोड़ा बहुत पूरे हिंदुइज्म को ही लेकर ना थोड़ा वो कर दिया था, एंड दैट्स व्हाई I I don't agree with that. See, I don't. I'm a मैं हिंदुइज्म को फुल ऑन मानता हूँ, ठीक है, बट आई डोंट एग्री कि पीके में हिंदुइज्म के बारे में कुछ बुरा बुरा भला दिखाया। मैं सिख हूँ। और सिखिज्म में कहते हैं कि सबका मालिक एक है, मतलब एक ओंकार। वह जो भी गुरु तो हमारे गुरुशिप देते हैं ना, वो तो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो अल्टीमेटली एक ओंकार, एक एक ही भगवान है हर जगह। कोई, चाहे वो अल्लाह कह लो, चाहे वो भगवान कह लो, चाहे वो गॉड कह लो, ऑलमाइटी, एक ही भगवान है, एक ही पावर है। और दिस इज बिलीव्ड इन हिंदुइज्म एज वेल। बट उस भगवान को वर्शिप करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आई वुड नॉट से कि आई वुड बी ऑफेंडेड एज अ हिंदू। अब कोई, आजकल तो वैसे ही चल रहा है ना कि भाई हर चीज में कोई ना कोई ऑफेंस ले लेता है किसी फैशन ना किसी में, बात। फैशन में हाँ। ऑफेंड होना। और और हम हमारे इंडिया में तो, हमारे यहाँ तो रामलीला चलती होती थी हमेशा। मैं शिवजी बनता होता था, वो रामलीला में ऐसी ऐसे ही बनाकर बिठा देते थे। नॉट द रामलीला में शिवजी का रोल ऐसा पार्ट नहीं था, पर वो बच्चों को फैंसी ड्रेस बनाकर बिठाई होती थी, तो मैं शिवजी बन के बैठा होता था कभी कभी छोटे होते हुए। और हम्म। बच्चे कितनी कैसी हरकतें करते हैं, लाइक वो लड़ रहे हैं। वो कभी ऐसे इतना फनी लग रहा है कि ऐसे शिव जी बना हुआ है एक, और एक वो बना हुआ, राम जी बना हुआ, और वो लड़ रहा है। तो दैट डजंट मीन के शिव जी लड़ रहे हैं राम से, ये क्या बात है यार। तो वही उसमें दिखाया था, और उसमें एक का तो नहीं, उसमें सबका ही बोला था कि वो मस्जिद में शराब ले जाता है। वो क्या कहते हैं, किसी वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन फ्यूनरल लड़की। पे। हाँ, वो कुछ कुछ ऐसे ही बोला था। वो ही वाज ट्राइंग टू गेट के रॉन्ग नंबर लग गया है कि हम गलत तरह से इसको देख रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग ऑफेंस। एंड यू नो सबका मालिक एक है। हम्म। अगर इफ यू but then you have to be positive or a negative person. How do you perceive things in life? I love that film. वो तो खैर ऑफेंस लेने की तो अलग बात है, टॉप बट टॉप थ्री, टॉप थ्री राजू हिरानी, हाउ वुड यू रेट? I what were the films? Munna Bhai. I can't make the top three choice, but like Three Idiots, PK, and Munna Bhai come at like the top three for me. And हाँ, ironic, I can't go top three. मतलब मेरा, Um, अगर मुझे एकदम से बोला जाए लाइक स्पॉन्टेनियसली, ऐड से मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स और ये डंकी तीसरे पे। आई रियली लाइक डंकी। और पीके मुझे उतनी उतनी वो नहीं लगी थी, पीके वो ठीक है। आई थिंक अगेन अ लॉट ऑफ द मैजिक वाज टेकन अवे बाय द फैक्ट कि उन्हीं दिनों वो इस तरह की और मूवीज आई थी, राइट। hmm. सो इट टुक अवे फ्रॉम द मैजिक But ऑफ इट। except the religion part of PK, वो उसका शेयर फनीनेस कितना था उस मूवी का। जो, इफ यू रिमेम्बर दैट सीन, फिर हमको लगा हमने उनका फैशन खराब कर दिया, फिर हमने वो ठीक कर दिया। वो मोटा सा वो जो भागता है उसके पीछे। और देन लाइक वो कहता है, अरे इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। कहता है कि हाँ, अच्छा। अच्छा बोलने के ही तीन चार तरीके हैं। हाँ। अच्छा, हमें सिखा रही है। ओ अच्छा। और फिर इट वाज सो अच्छा। फनी वो। अच्छा। कह रहा है, एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग है।
Right. हाँ I mean, these are all like simple jokes, but it was portrayed so well in the film. आई That's थिंक why, दैट्स यही कला है राजू हिरानी की। वो बहुत सिंपल सिंपल चीजों में न्यूआंस ढूंढता है। वो एक होते हैं ना अंकल जो हमेशा ऐसे बैठे होते हैं और बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर उस पर hmm, मजाक उड़ा देते हैं, हाँ, 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 उसका मजाक बना देते हैं। ही इज वन ऑफ दोज। आई रियली लाइक द सिंपलिसिटी। और वो बंदा भी ऐसे एकदम बस सिंपल सा है, लाइक पॉजिटिव काइंड ऑफ गाय। hmm. एवरीवन गो वॉच इट मैन। हमारा टाइम भी थोड़ा 1 आवर पर जा रहा है। Guys, watch Dunki, please. Yeah, वॉच go टंकी, ahead, say it to the बॉयज एंड alpha males, गर्ल्स, boys and ladies. अल्फा मेल्स भी जाए देखने। Alpha, beta, गामा। Zanzis, boomers, please go watch Dunki. ओ एक पॉडकास्ट मैंने पता है किस टॉपिक पे करना है, अबाउट दिस होल इंटरनेट। ये जो सारी डिविजन्स आ गई हैं, आई थिंक दे आर डूइंग मोर बैड Okay. देन गुड, बट दैट्स फॉर अनदर टाइम। Yeah, we're at the end of the podcast then, I guess. 1 hour 55. So, closing marks will be by Mr. Singh, I guess. Okay, boys and ladies, please like, subscribe, and comment if you might. If you like the video, you can also dislike it, although it doesn't matter. But so we know where you're appreciating a content. Yeah, go ahead. No, मैं ना like back in the days, when मेरा बचपन से नहीं, but since a long time when I was a child, I even wanted to make YouTube। जब YouTube नया नया था, तब मैंने ये सोचा था कि if you like our videos, give it a thumbs up. If you don't like it, give it a ठेंगा। नहीं, क्या था? हाँ ऐसे ठेंगा, ऐसे ठेंगा, हाँ। तो डोंट डाउन वोट, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी तो ठेंगा। उसे भी लाइक दे दो. ठेंगा दो उसे। Hmm. Okay. All right, that's been episode 5. We hope you enjoyed the show, and we'll meet you very soon with another episode of the A2H Podcast. Take care of yourselves, stay healthy, stay young, stay fresh.